السلام علیکم. آج ہم نے ٹاپک اسٹڈی کرنا ہے ڈی بی ایم ایس لینگویجز. ڈیٹا بیس میں ڈفرینٹ لینگویجز یوز ہوتی ہیں. موسٹ پاپولر لینگویج ہے ایس کیو ایل لینگویج, اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج, اور اس کے علاوہ اور بھی کافی لینگویجز ہوتی ہیں ایسی جن سے ہم ڈفرینٹ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. ڈیٹا بیس لینگویجز آر یوز ٹو ریڈ, اپڈیٹ اینڈ اسٹور ڈیٹا ان ڈیٹا بیس. دیر آر سیورل such languages that can be used for this purpose. One of them is SQL, that is structured query language. There are some certain types of commands provided with such languages that help for data manipulation in DBMS. The commands are categorized under following headings. Most popular language جیسے میں نے بتایا structured query language ہے, SQL language, اور different commands, different types کی commands جو ہے وہ ان languages میں ہم استعمال کرتے ہیں different type کے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے. ان کی 4 طرح کی کیٹیگریز ہیں. فرسٹ ون از ڈی ڈی ایل, ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج, ڈی ایم ایل, ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج, ڈی ایس ایل, ڈی سی ایل, ڈیٹا کنٹرول لینگویج, اینڈ ٹی سی ایل, ٹرانزیکشن کنٹرول لینگویج. ان کے بارے میں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. فرسٹ ون از ڈی ڈی ایل, ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج. ڈی ڈی ایل از یوزڈ فار اسپیسیفائنگ دا ڈیٹا بیس اسکیما. It is used for creating tables, schema, indexes, constraints, etc. in database. Let's see the operations that we can perform on database using DDL. Data definition language. اس کے نام سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ڈیٹا بیس میں ٹیبلز کریٹ کرنے کے لیے, انڈیکسز کریٹ کرنے کے لیے اور ڈفرینٹ طرح کے رولز کریٹ کرنے کے لیے, ڈیٹا کو سٹور کرنے کے ہم ڈی ڈی ایل لینگویج یوز کرتے ہیں. ڈفرینٹ آپریشنز ہیں جن کی لسٹ آپ کے سامنے ہیں جو کہ ہم ڈی ڈی ایل کو یوز کرتے ہوئے پرفارم کرتے ہیں. فرسٹ ون ہے کریٹ آپریشن ٹو کریٹ دا ڈیٹا بیس انسٹنس, اینڈ سیکنڈ ون از آلٹر ٹو آلٹر دا اسٹرکچر آف ڈیٹا بیس. آلٹر مینس any change or modification. Drop, to drop database instances. Truncate, to delete tables in a database instance. database کی لینگویج میں ٹیبل کو یا ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے پروسیس کو ہم ٹرنکیشن کہتے ہیں. کسی ڈیٹا بیس انسٹنس کو ری نیم کرنے کے لیے ری نیم کی کمانڈ یوز ہوتی ہے. اور ٹو ڈراپ آبجیکٹ فرام ڈیٹا بیس سچ ایز ٹیبلز, کسی ٹیبل کو کمپلیٹلی ڈراپ کرنے کے لیے اسے ہم ڈراپ کمانڈ کہتے ہیں. All of these commands either defines or update the database schema. That's why they come under data definition language. یہ تمام commands ان کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ یا تو ڈیٹا کو ڈیفائن کرنے کے لیے یا انہیں اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں, اسی لیے یہ ڈی ڈی ایل لینگویج میں شامل ہے. Second one is DML, data manipulation language. DML is used for accessing and manipulating data in a database. The following operations on a database comes under DML. مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا پر کسی بھی قسم کا آپریشن پرفارم کرنا, اسے مینیپولیشن کہتے ہیں. تو ڈی ایم ایل نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو لینگویج ہم یوز کریں گے وہ ڈی ایم ایل ہے. اس میں ڈفرینٹ آپریشن جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں, جیسے کہ فرسٹ ون از سلیکٹ, ٹو ریڈ ریکارڈ فرام ٹیبل. ٹیبل سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنے کے لیے ہم یا ریڈ کرنے کے لیے ہم سلیکٹ کمانڈ لگاتے ہیں, انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ. یہ سب انگلش کے ورڈز ہیں اور ان کے جو انگلش میں میننگ ہے وہی یہاں پر ہے. انسرٹ کا مطلب ٹیبل میں ڈیٹا یا نیا ریکارڈ انٹر کرنا. اپڈیٹ کا مطلب ہے نیا ڈیٹا یا آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنا, ماڈیفائی کرنا. اور ڈیلیٹ مینس ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا. ڈی سی ایل, ڈیٹا کنٹرول لینگویج. DCL is used for granting and revoking user access on a database. To grant access to user, to revoke access from user. یوزر کو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کی پرمیشن دینے کے لیے ہم گرانٹ کمانڈ یوز کرتے ہیں, یعنی یوزر کو ایکسیس گرانٹ کر دی گئی ہے. اور ریووک کا مطلب یہ کہ یوزر سے وہ ایکسیس ختم کر دی گئی ہے, یوزر سے مزید ایکسیس نہیں کر سکتا, اینڈ دیٹ از کالڈ ریووک. In practical, data definition language, data manipulation language, and data control languages are not separate languages. Rather, they are the parts of a single database language such as SQL. یہ تینوں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ الگ الگ لینگویجز بیسیکلی نہیں ہیں, یہ ایس کیو ایل لینگویج کے ہی پارٹس ہیں. یعنی آپ اگر ایس کیو ایل لینگویج یوز کرتے ہیں تو ان میں یہ تینوں طرح کے آپریشنز ایس کیو ایل سپورٹ کرتی ہے. فورتھ ون از ٹرانزیکشن کنٹرول لینگویج, TCL. The changes in the database that we made using DML commands are either performed or roll back using TCL. جو ڈیٹا بیس میں ہم چینجز پرفارم کرتے ہیں یا تو وہ چینجز کمانڈس کو ڈی ایم ایل کمانڈس کو یوز کرتے ہوئے پرفارم ہو جاتی ہیں یا وہ رول بیک ہو جاتی ہیں. رول بیک مینس
ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی. To permit the changes made by DML commands in database, we use the command for that is called commit. And to roll back the changes made to the database, command is rollback. Data models in DBMS. Important question, important topic. Data model is a logical structure of database. ماڈل ہم کسی بھی چیز کے اسٹرکچر کو کہتے ہیں. کسی ریئل لائف آبجیکٹ کو کا اگر ہم ماڈل کریٹ کریں تو وہ بیسیکلی بالکل اس جیسا ہی دکھنے میں ہوتا ہے. اسی طرح سے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ماڈلز جو ہیں وہ لاجیکل اسٹرکچر ہوتا ہے ڈیٹا بیس کا, فزیکل نہیں لاجیکل. یعنی فزیکل تو چیزیں جو ہمارے سامنے پڑی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. لاجیکل وہ ہے جو کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے, اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے کریٹ کرتے ہیں, تو اسے ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں. ڈسکرائب دا ڈیزائن آف ڈیٹا بیس ٹو ریفلیکٹ اینٹیز, ایٹریبیوٹس, ریلیشن شپ امانگ ڈیٹا, کنسٹرینٹس ایکسیٹرا. اب وہ جو لاجیکل ڈیزائن ہے یا لاجیکل اسٹرکچر ہے, بیسیکلی وہ ڈیٹا بیس میں موجود اینٹیز, موجود ایٹریبیوٹس, ان کے درمیان میں ریلیشن شپ اور کنسٹرینٹ, ان سب کے بارے میں ڈیفائن کرتا ہے. There are several types of data models in DBMS. First one is object-based logical models. These models describe data at the conceptual and view levels. پیچھے ہم نے 3 لیول آرکیٹیکچر پڑھا تھا ڈیٹا بیس کا. یہ آبجیکٹ بیسڈ لاجیکل ماڈلز وہ ماڈلز ہیں جو کہ کنسپچل اور ویو لیولز کی بیس پر, یعنی ان لیولز پر رہتے ہوئے ڈیٹا کو ماڈل کریٹ کرتے ہیں. اس کے 2 بیسک ٹائپس ہیں, ای آر ماڈل, اینٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل, اینڈ سیکنڈ ون از آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل. ای آر ماڈل ڈسکرائبز the structure of a database with the help of a diagram. ای آر ماڈل بیسیکلی ایک ڈائیگرام کی شکل میں ڈیٹا بیس کو ایکسپلین کرتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس کو ڈائیگرامیٹیکلی یا گرافیکلی ڈینوٹ کرتے ہیں, اور اس ڈائیگرام کے اندر تمام اینٹیز, تمام آبجیکٹس, تمام ان کے درمیان میں آپس میں تمام ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسے ہم بلو پرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک نقشے کے طور پر جو ہے یہ ڈیٹا بیس کے نقشے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل جو ہے وہ is a database management system in which information is represented in the form of objects as used in object oriented programming. اس ڈگری میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے کورس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا, جو کہ پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں ہم آبجیکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یعنی آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں اور ان آبجیکٹس کو استعمال کر کے ہم اپنا ڈیٹا بیس میں جتنے بھی ورکنگ ہیں ان کو مینیج کریں گے. ریکارڈ بیسڈ لاجیکل ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ لائک آبجیکٹ بیسڈ ماڈلز they also describe data at the conceptual view levels. These models specify logical structure of database with records, fields and attributes. I hope اس لائن کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہے تو یہ لاجیکل اسٹرکچر ہی, لیکن یہ ریکارڈز, فیلڈز اور ایٹریبیوٹس کو ڈسکرائب کرتا ہے کیونکہ اس کا نام یہ ریکارڈ بیسڈ لاجیکل ماڈل ہے. فرسٹ ون از hierarchical model. In the hierarchical model, the data is stored in the tree-like structure. hierarchy سے مراد یہ ایک ٹری لائک اسٹرکچر کریٹ ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی جس طرح ایک ٹری کا روٹ نوڈ ہوتا ہے, اس نوڈ سے آگے جو ہے مزید اور نوڈز کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم اوپر والے نوڈ کو جو ہے کہتے ہیں پیرنٹ نوڈ, اور نیچے والے نوڈز کو ہم کہتے ہیں چائلڈ نوڈز. اور اس طرح ایک ہیرارکی کی فارم میں ڈیٹا کا آپس میں ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن شو ہوتا ہے. نیٹ ورک ماڈل ہیرارکل ماڈل سے بالکل سیم ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ that it has a graph like structure rather than a tree based structure. ٹری کا اور گراف میں فرق ہوتا ہے. ٹری میں ہمیشہ نوڈز ہوتے ہیں اور ایک نوڈ کے بعد آگے کچھ چائلڈ نوڈز ہوتے ہیں, اور جو گراف ہوتا ہے اس میں یہ ٹری والا فارمولا جو ہے اپلائی نہیں ہوتا. نیٹ ورک ماڈل میں بالکل ہیرارکل ماڈل کی طرح ہی ایک گراف کہہ لیں یا ڈائیگرام کی شکل کہہ لیں, اس طرح کا اسٹرکچر بنتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ نیٹ ورک ماڈل میں گراف لائک اسٹرکچر ہوتا ہے اور ہیرارکل ماڈل میں ٹری لائک اسٹرکچر ہوتا ہے. ریلیشنل ماڈل. ریلیشنل ماڈل ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ ہم ٹیبلز کے درمیان میں, ریلیشنز کے درمیان میں ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ریلیشنل ماڈل بناتے ہیں. ڈیٹا بیس میں ٹیبل کو کریٹ کرنا, ٹیبل کا دوسرا نام ہوتا ہے ریلیشن. فزیکل ڈیٹا ماڈل. These models describe data at the lowest level of abstraction. A physical data model is a database specific model that represents relational data objects, for example tables, columns, primary and foreign keys and their relationships. جو فزیکل ڈیٹا ماڈل ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں DDL لینگویج جنریٹ کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ آپ کے ڈیٹا کو فزیکلی
क्रिएट कर देता है एक डेटाबेस में। ईआर डायग्राम को डिटेल में जो है हम देखते हैं, आपको मैंने डेफिनेशन पहले बता दी। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, इसमें हम एंटिटीज का रिलेशनशिप आपस में शो करते हैं। एंटिटीज कहते हैं हर उस ऑब्जेक्ट को, हर उस डाटा को जो कि डेटाबेस में एंटर हो रहा है, एंट्री से वर्ड निकला एंटिटी, उसे हम एंटिटीज कहते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। ये जो स्टूडेंट वाला बॉक्स है और ये जो कॉलेज वाला बॉक्स है, ये दो बेसिकली एंटिटीज हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये हमने एक डेटाबेस क्रिएट की है एजुकेशन के नाम से, लेट्स सपोज कह लेते हैं, और उसमें हमने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट के नाम से और कॉलेज के नाम से। ये दो टेबल्स हैं। स्टूडेंट के आगे तीन एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट एड्रेस। इसी तरह कॉलेज वाले टेबल के भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो फील्ड्स हैं, कॉलेज आईडी और कॉलेज नेम। और ये जो दरमियान में रोम्बस सिंबल है, ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंबल्स हैं जो ये डायग्राम में हम यूज करते हैं। रेक्टेंगल सिंबल जो है वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में भी है। एलिप्सिस जो है वो एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होते हैं। डायमंड सिंबल रिलेशनशिप को यूज करने के लिए होता है। और लाइंस जो है वो एक लिंक हमें शो करती हैं कि इस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ इस तरह एक लिंक है। इसी तरह से डबल एलिप्सिस अगर हम यूज करते हैं तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, यानी एक एट्रीब्यूट और उसकी मल्टीपल वैल्यूज। और डैश्ड एलिप्सिस आप यूज करेंगे तो वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, यानी आपने एक एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट ड्राइव किया है, तो वहाँ पे डैश्ड या डॉटेड एलिप्सिस यूज होते हैं। डबल रेक्टेंगल्स को हम वीक एंटिटी सेट्स के लिए यूज करते हैं और डबल लाइंस को हम यूज करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप सेट। ये एक ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। ये तीन का तरह के कंपोनेंट्स जो है वो ईआर डायग्राम में शामिल होते हैं। एंटिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो डाटा हमारा टेबल में स्टोर हो रहा है या डेटाबेस में स्टोर हो रहा है वो बेसिकली एंटिटी है, जिस तरह स्टूडेंट और कॉलेज है वो एंटिटी है। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट बेसिकली वो फील्ड्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं उन एंटिटीज की जो कि हमने टेबल में या डेटाबेस में स्टोर किए हैं। जैसे हमने डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया और स्टूडेंट की जो है आगे मजीद एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उसका रोल नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसकी एक एज होती है, उसका एड्रेस होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट से बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स ड्राइव्ड हों। जैसे स्टूडेंट का एक एड्रेस है तो वो उसका एक एट्रीब्यूट है, उस एड्रेस में आगे मजीद तीन चीज़ें हैं, पिन कोड है, स्टेट है और कंट्री है। ये जो ऊपर मैंने आपको बताया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ये उसकी यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो शो किया गया है। स्टूडेंट एंटिटी है। स्टूडेंट आईडी वाली जो एट्रीब्यूट है इसके नीचे एक सिंगल लाइन लगी हुई है। ये सिंगल लाइन का मतलब होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। जनरली मैं इतना बता देता हूँ कि एक टेबल में किसी भी रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी भी एक फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं और वो फील्ड ऐसा होता है जो कि यूनिक हो। और ये डैश्ड एलिप्सिस का जो है आपको मैंने बताया था, फिर ये डबल एलिप्सिस का भी जो है बताया। रिलेशनशिप तीन चार तरह के हो सकते हैं, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। फॉर एग्जाम्पल वन टू वन की एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ लेते हैं। पर्सन हैज पासपोर्ट, ये वन टू वन रिलेशनशिप है। कैसे? एक पर्सन के पास एक ही पासपोर्ट हो सकता है एक वक्त में, और एक पासपोर्ट का ओनर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है, तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है जहाँ पर दोनों एंटिटीज सिंगल है। वन टू मैनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है इससे। कैसे? एक साइड पर जो है एंटिटी सिंगल है, दूसरी साइड पर मल्टीपल है। तो कस्टमर प्लेस्ड ऑर्डर, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। जैसे लेट्स सपोज आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते हैं तो आप एट द सेम टाइम मल्टीपल चीज़ें परचेज कर सकते हैं। मैनी टू वन का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। एक तरफ मल्टीपल एंटिटीज हैं, एक तरफ सिंगल। स्टूडेंट स्टडी कॉलेज, एक कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट स्टडी करते हैं, एक स्टूडेंट कभी भी मल्टीपल कॉलेज में स्टडी नहीं करता। और मैनी टू मैनी का मतलब दोनों तरफ मल्टीपल एंटिटीज हैं। स्टूडेंट असाइंड प्रोजेक्ट, एक स्टूडेंट को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किए जा सकते हैं या मल्टीपल स्टूडेंट्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन किए जा सकते हैं। रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। In relational models, the data and relationships are represented by a collection of interrelated tables. Each table is a group of column and rows where column represents attribute
of an entity and rows represents records. रिलेशनल मॉडल के बारे में आपको बता दिया कि हम यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल का दूसरा नाम रिलेशन होता है डेटाबेस में. जैसे एग्जांपल आपके सामने है, स्टूडेंट के नाम का एक टेबल क्रिएट किया गया जिसमें 3 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज. इसी तरह कोर्स के नाम का जो है एक टेबल क्रिएट किया गया है जिसके भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं. RDBMS कॉन्सेप्ट. RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जिस तरह डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह से रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम RDBMS यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशनल डेटाबेस के कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें टेबल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं. रिकॉर्ड का दूसरा नाम टपल होता है, यानी रिकॉर्ड्स कहते हैं डाटा को, एक रो को. फील्ड, कॉलम और एट्रीब्यूट, डोमेन, इंस्टेंस, स्कीमा, कीज, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं. टेबल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, टेबल रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, स्टोर करने के मेथड को हम बोलते हैं. रिकॉर्ड कहते हैं किसी भी एक रो को, और इसी को हम टपल भी कहते हैं. फील्ड और कॉलम और एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूँ कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं. डोमेन कहते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ permitted values of for an attribute in table. एक टेबल में एक एट्रीब्यूट के लिए कुछ वैल्यूज अगर आपने अलाउ की हुई हैं कि ये वैल्यूज ही इसमें स्टोर हो सकती है, इसके अलावा कुछ वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, तो वो डोमेन है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एट्रीब्यूट बनाया हो कंट्री के नाम से, तो कंट्री के नाम से जो आपने एट्रीब्यूट बनाया होगा उसके अंदर ऑब्वियसली जो वैल्यूज हैं वो कंट्री के नेम होंगे. तो वो जो कंट्री के नेम्स हैं बेसिकली वो डोमेन है. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का, कीज. यानी की क्या होती है कि किसी भी फील्ड को हम कहते हैं की, और वो फील्ड वो की होती है जो कि यूनिक हो, यानी जिसमें डाटा ना तो रिपीट हो रहा हो, ना ही उसमें डाटा मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो, ना उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना हो, और हर तरह से वो यूनिक हो, उसके नाम के लिहाज से भी और वैल्यूज के लिहाज से भी. उस फील्ड को हम की बनाते हैं. कीज मल्टीपल तरह की होती हैं. पहली होती है प्राइमरी की. और एक बात याद रखिएगा, प्राइमरी की हर टेबल में एक लाजमी होती है. प्राइमरी की, a primary is a column or set of columns in a table that uniquely identifies tuples in that table. की वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, मीनिंग इसका सेम है. प्राइमरी की का वो ये है कि जो हमारी की है वो टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है. जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट के टेबल में एक रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट या फील्ड है जिसको हम कह सकते हैं कि वो यूनिक है, क्योंकि रोल नंबर के अलावा हमने ऊपर ये टेबल पढ़े हैं यहाँ पे स्टूडेंट के, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एज. इन तमाम चारों एट्रीब्यूट्स में से सिर्फ ये स्टूडेंट आईडी एक ऐसा फील्ड है जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती. दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है, उनका एड्रेस सेम हो सकता है, एज भी सेम हो सकती है, लेकिन आईडी या रोल नंबर या CNIC नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डिफरेंट होते हैं. तो ऐसी फील्ड को हम प्राइमरी की बना सकते हैं. और इसको प्राइमरी की बनाने का मतलब ये होगा कि मैंने उसको इसलिए बनाया है कि मैं पूरे टेबल में से किसी भी एक रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लूँ. जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टेबल में से रोल नंबर 10 का जो रिकॉर्ड है वो मेरे सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए. तो जो रोल नंबर 10 होगा वो बेसिकली क्या है, यूनिक है, क्योंकि रोल नंबर 10 पूरे टेबल में एक ही स्टूडेंट का होगा, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता. इसलिए मैंने उसको इस रोल नंबर वाले फील्ड के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया. Second one is super key. Super key is a set of one or more columns to uniquely identify rows in a table. Super key एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिलाकर हम जो है बनाते हैं काम, ये प्राइमरी की का ही वाला ही करती है. कैंडिडेट की, a super key with no redundant attribute is known as a candidate key. कैंडिडेट की बेसिकली क्या होती है, हमारे टेबल में हो सकता है दो एट्रीब्यूट्स ऐसे हों जो कि प्राइमरी की बनाए जा सकते हो. जैसे अगर आपके एक ही टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो दोनों ही यूनिक होते हैं, आप दोनों को प्राइमरी की बना सकते हैं. तो वो जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो कैंडिडेट की कहलाएंगे, जो कि प्राइमरी की के लिए सूटेबल है. अल्टरनेट की क्या होगी, जिस एक टेबल को जिस एक एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बना दी, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइमरी की एक ही हो सकती है,
जिस दोनों में से जिस एक एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की बना दी उसको तो प्राइमरी की कह दिया जाएगा, लेकिन दूसरा एट्रीब्यूट जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया लेकिन वो बन सकता था, उसमें सारी वो फीचर्स हैं, उसको हम कहेंगे अल्टरनेट की। कंपोजिट की ये दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम जब प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। अक्सर टेबल हमारा ऐसा होता है जिसमें कोई भी यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होता, यानी कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं जिसमें वैल्यूज रिपीट ना हो रही हो या यूनिक ना हो। तो ऐसे में हम दो को मिलाकर जो है वो एक प्राइमरी की बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो टेबल में प्राइमरी की वाला काम करने लग जाता है। जैसे लेट्स सपोज अगर रोल नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, दो क्लासेस में सेम रोल नंबर हो सकते हैं, एक क्लास का रोल नंबर 1 to 100 है, दूसरी क्लास का भी रोल नंबर 1 to 100, लेकिन क्लास का नेम सिर्फ चेंज है, तो रोल नंबर तो भाई यूनिक ना हुआ। ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी भी एक और चीज़ को साथ मिला लेते हैं, जैसे लेट्स सपोज सब्जेक्ट को मिला लेते हैं। तो रोल नंबर 1 जो है जो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ता हो, तो ये कोई एक ही स्टूडेंट होगा जो रोल नंबर 1 भी होगा और सब्जेक्ट भी इंग्लिश पढ़ता होगा। ऐसे में दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कंपोजिट की। फॉरेन की होती है, हम इस्तेमाल करते हैं दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। एक टेबल में होगी प्राइमरी की, दूसरे टेबल में होगी फॉरेन की, और प्राइमरी और फॉरेन की दोनों सेम नाम से होंगी, सेम उसकी वैल्यूज होंगी, यानी कि फॉरेन की प्राइमरी की से ही ड्राइव की गई होगी। तो जब ऐसा होगा तो ऐसे में हम जो दूसरी ड्राइव की हुई की है या ड्राइव किया हुआ टेबल है उसे हम कहेंगे फॉरेन की। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी सिंपली हम एसक्यूएल लैंग्वेज को, मैंने क्लास में शायद बताया था, एसक्यूएल लैंग्वेज में हम जो कमांड्स देते हैं डेटाबेस को, उन कमांड्स को हम क्यूरी कहते हैं। वो डाटा को स्टोर करने के लिए भी हो सकती हैं, डाटा को रिट्रीव करने के लिए भी हो सकती हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हो सकती हैं। क्यूरी लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। Procedural query language. In procedural query language, user instructs the system to perform series of operations to produce the desired results. Procedural वो होती है जिसमें ऑपरेशन सीरीज वाइज परफॉर्म होते हैं, यानी एक पूरी सीरीज है, डिफरेंट रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए आप वो सीरीज की सीरीज पूरी इकट्ठी जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसकी लेते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजरल लैंग्वेज। For example, you are asking your friend to make a cup of tea. If you are just telling him to make a tea and not telling the process, then it is a non-procedural language. However, if you are telling the step-by-step process, like switch on the stove, boil the, आपने अगर कोई काम कहा है किसी को, सिर्फ इतना कह दिया कि काम कर दें और आपने डिटेल्स कोई नहीं दी, ऐसे में आपने उसको नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया है। जब आप उसको डिटेल बता देते हैं कि ये काम आपने करना भी कैसे है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सारा बता रहे हैं, तो वो बेसिकली प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है। इसमें मेरे ख्याल प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल दोनों ही क्लियर हो गई होंगी। डेटाबेस में डीबीएमएस में हम नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, टेबल्स को नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना। टेबल्स में कुछ एरर्स हो सकते हैं, डेटाबेस की जुबान में हम एरर्स को अनोमलीज कहते हैं। यहाँ पर उन अनोमलीज को, उन एरर्स को रिमूव करने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन करना। वो ये 1NF 2NF 3NF ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं। रिलेशन डेटाबेसेस इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ, जहाँ पर रिलेशन है, टेबल है, और नॉन रिलेशनल वो होंगी जिसमें टेबल्स नहीं है या उनमें लैंग्वेजेस ही ऐसी यूज़ हो रही है जो कि बिना टेबल्स के और बिना रिलेशनशिप के काम कर रहे हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ये आप खुद रीड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होती है, मैंने आपको शुरू में बताया, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्लासेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके डाटा क्रिएट करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं और डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ये आपका टास्क है, ये आप खुद इसको रीड करेंगे। मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस क्या होती है, इसकी मैं इस एग्जांपल के साथ आपको जो है वो समझा देता हूँ। एक तो डाटाबेस वो है जिसमें आपने डाटा स्टोर किया, डाटा स्टोर हो गया, आपने डाटा रिट्रीव किया, डाटा रिट्रीव हो गया। एक है मल्टी डायमेंशनल जिसमें डाटा जो है प्रोसीजर वाइज या स्टेप बाय स्टेप स्टोर हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप ही एक्सेस किया जा रहा है, वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस कहलाएगी। इसकी एग्जांपल है, अ मैनेजर एट अ रिटेल बिजनेस मे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सेल्स, कस्टमर सेल्स फॉर ईच रीजन स्पैनिंग अ गिवन टाइम। मैनेजर एट द टाइम सेम business may want information about product sales. A multi-dimensional database can consolidate
this type of data from multiple dimensions. یعنی آپ نے لیٹ سپوز میں آپ کو کہہ دوں کہ ایک ہی وقت میں مجھے اپنے سارے سبجیکٹس جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ دکھائیں، تو آپ ایک ایسا ڈاکیومنٹ مجھے دکھا رہے ہیں جس میں ان سب کی ڈیٹیل موجود ہو. تو وہ بیسیکلی کیا ہے، ملٹی ڈائمینشنل ڈیٹا بیس ہے، جو کہ میں نے ایٹ دا سیم ٹائم ملٹیپل پروسیجرز کو پرفارم کیا، ایگزیکیوٹ کیا یا ایکسیس کیا. تھینک یو.